Hello everyone, today I am going to explain you something about set. Now what is a set? Set, as you say, is a collection of well defined means specific, a collection of well defined distinct objects is called a collection of well defined distinct object is called a set. A set is represented by capital letter. Capital letters you can take any letter A, B, C, D. Then you have to make equal to sign. After that you have to make curly brackets. Now the set of natural numbers up to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now this is a set. Take another example, Z. Set of vowels. Vowels means A, E, I, O, U. Now set Z represents vowels of English alphabet A, E, I, O, U. Now these two are the examples of set. These two examples are well defined objects. Now what is not a set? A object which is not well defined is not a set. Suppose I say flowers in the garden. The flowers in the garden are many. लोटस भी है, लिली भी है, जैस्मिन भी है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. तो उसमें फ्लावर्स जो है गार्डन में वो सेट नहीं होगा. अब हम कहें कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर इंटीजर्स, तो ये जो है सेट है. कलेक्शन ऑफ डेटा विच कंटेन इंटीजर्स. इंटीजर्स जो है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे, सारे नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो वो भी सेट कहलाएगा. अब हम कहें ऑल इंटेलिजेंट बॉयज़. अब ऑल इंटेलिजेंट बॉय इन अ क्लास, तो यू कैन नॉट डिफाइन विच बॉय इज़ इंटेलिजेंट एंड विच बॉय इज़ नॉट. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ नॉट वेल डिस्टिंक्ट, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट. सपोज आई से 3 days of a week. 3 days of a week is also not well defined. It can be Monday, it can be Tuesday, it can be Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So 3 days of a week is not a well defined set. Take another example, all days of the week. तो all days of the week में मंडे से लेकर संडे से लेकर सैटरडे तक सारे डेज आ जाएंगे, तो ये जो है वो वेल डिफाइंड है. सपोज कीजिए एक अदर एग्जाम्पल लीजिए, मंथ ऑफ द ईयर. तो मंथ में देर आर 12 मंथ इन द ईयर. तो 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ के हिसाब से जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो ये भी वेल डिफाइंड है. ये सारे सेट जो हैं, सेट किसे कहते हैं? जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होता है उसको. अब जैसे ऑल इंटेलिजेंट बॉय, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पहले भी, तो ऑल इंटेलिजेंट, देयर इज़ नो क्राइटेरिया और एनीथिंग विच बाय विच यू कैन डिसाइड विच बॉय इंटेलिजेंट और विच बॉय इज़ नॉट इंटेलिजेंट. सो दिस इज़ नॉट अ सेट. सपोज आई से अदर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स whose height is greater than 150 centimeter. So this is a set. So you can distinctly separate the boys whose height is 150 centimeter, greater than 150 centimeter. So write the names of those students whose height is 150 greater than 150. So it is a collection of well defined sets. तो सेट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप वेल डिफाइंड हो वो सेट कहलाती है, और जो वेल डिफाइंड ना आ पाए वो सेट नहीं कहलाती है. अब how can you describe a set? How can you mention a set? There are 3 methods by which you can describe या mention a set. Representation of a set. How will you represent a set? Representation of a set. तो there are 3 methods, 3 तरीके हैं जिससे you can represent a set. तो सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्शन मेथड. डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया. सेकेंड मेथड इज रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर मेथड और tabular form. And the third type is rule method
और सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन कह दीजिए, और रूल मेथड कह दें। तो दीज थ्री मेथड्स आर द वेज बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट अ सेट। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकेंड है रोस्टर मेथड, और तीसरा है सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू all the three methods taking one example. Suppose I am taking the example of all natural numbers less than 10. So how will you represent this all natural numbers less than 10 by first method? तो first method में you have to write the set name A हो गया equal to curly brackets. In description method you have to write in English what type of numbers the such is representing. हमने क्या एग्जाम्पल लिया आपको? आई हैव टेकन एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये जो सेट है इसको आपको डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है। डिस्क्रिप्शन मेथड में कैसे लिखेंगे? आ सेट ऑफ natural numbers less than 10. Now how you would write the same set in rooster method or tabular form? rooster method या tabular form में आप कैसे लिखेंगे? तो यही अल्फ़ाबेट A is equal to, you have to write the numbers tabular form 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन 10 है तो यू हैव टू राइट अप टू 9। दिस मेथड इज टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेम सेट बाय सेट बिल्डर नोटेशन? सेट बिल्डर नोटेशन से अगर आपको सेट रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? ये तीसरा मेथड आपका ये हो गया। अगेन यू हैव टू राइट A इक्वल टू, यू हैव टू टेक एनी वेरिएबल, x ले लें, y ले लें, z ले लें, x, फिर सच डैट के लिए आप कोलन यूज़ कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट बार यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, x सच डैट x, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू साइन, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू का साइन रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए आप n रिप्रेजेंट करेंगे तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नाउ यू हैव टू सप्लाई द लिमिट, कहाँ तक नेचुरल नंबर्स हैं, किस लिमिट तक है? तो लेस देन 10 है तो यू हैव टू राइट x लेस देन 10। दीज थ्री मेथड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। पहला डिस्क्रिप्शन मेथड, ये आप सीधे सीधे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देंगे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। दूसरा है आपका रूस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म, तो आप टेबुलर फॉर्म में टेबल में फॉर्म में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9। और तीसरा जो है आपका सेट बिल्डर नोटेशन है वो आप इसमें लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे लिमिट दे देंगे x लेस देन 10। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एंड इट इज़, दिस सेट इज़ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट हो गया ये, और दिस सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स और फाई साइन, इसको बोलते हैं फाई। ये हो गया एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज सिंगलेटन सेट। A set containing only one element, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगल सेट। अब वो सिंगल सेट में कोई एक एलिमेंट आप लिख दें, a इज इक्वल टू 1, ये हो गया सिंगल सेट, b इज इक्वल टू z,
ये हो गया आपका सिंगल सेट। तो दो तरह के सेट हो गए, एक एम्प्टी सेट हो गया, एक सिंगलेटन सेट हो गया। फिर नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल A is equal to A, B, C, D, E। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स। इस सेट में A में 5 एलिमेंट्स हैं, A, B, C, D, E, यानी फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स हैं। तो A, B, C, D, जो इसके एलिमेंट हम जो है काउंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फिर है फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, a set whose elements cannot be counted। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट जो है आप काउंट ना कर सकें, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में आपको ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3 4 5 ये चलते रहते हैं, तो ये जो है इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स कह दीजिए। सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे आपका z इज इक्वल टू, इधर से नेगेटिव होंगे लेफ्ट साइड से, -3 डैश 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 -3 -2 -1 फिर 0, देन आर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता रहेगा। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट जो है ना काउंट कर सकें, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट जो है वो काउंट किए जा सकें। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट two sets whose elements are the same. There are two sets whose elements are the same. Suppose I am taking two sets. Set T is equal to 1 2 3 and I am taking another set Z. इसके एलिमेंट है 2 3 1। The elements of these two sets are same. सेट T के एलिमेंट है 1 2 3, सेट Z के एलिमेंट है 2 3 1। तो ये 1 2 3 और 2 3 1 ये दोनों एलिमेंट जो हैं सेम हैं और इक्वल हैं। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसके में, तो ये जो है सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में दो सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट्स यहाँ पे सेम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। जैसे सेट ए में हमने ले लिया ए बी सी और सेट बी में हमने ले लिया 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स आर सेम। इसमें भी 3 एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी में भी 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो ये जो है क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी तीनों में एलिमेंट, दोनों सेट में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल के मतलब नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि दोनों ही सेट में एलिमेंट्स की जो सेम होते हैं, एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 है, बस लिखा गलत ऑर्डर में है, अलग अलग ऑर्डर में, यहाँ 1 पहले लिखा है, यहाँ 1 लास्ट में लिखा है, बट द एलिमेंट्स आर सेम, तो सीधा सेम एलिमेंट, तो इसलिए बोलते हैं इक्वल सेट। इसको इक्वल सेट बोला जाता है। ओवरलैपिंग सेट। If there are two such sets such that one element in both the sets is common, एक ऐसा सेट हो, दो ऐसे सेट हो जिसमें एक एलिमेंट जो है दोनों ही सेट में हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सेट T इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट B इज इक्वल टू 5 6 7 4। तो दोनों ही सेट में आप देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ बी में भी 4 एलिमेंट है 5 6 7 4, बट 4 एलिमेंट 4 इज़ कॉमन इन बोथ द सेट, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। फिर
नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स नो एलिमेंट कॉमन या नो कॉमन एलिमेंट। इफ देयर आर सो टू सेट्स, सेट ए ले लिया आपने, ए बी सी, और सेट जो है जेड ले लिया आपने 1 2 3। बोथ द सेट्स कंटेन 3 एलिमेंट्स ईच। सेट ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी, सेट जेड में 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो दोनों में एलिमेंट सेम है, बट देयर इज़ नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स। लेकिन दोनों सेट में कोई एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें बहुत सारे सेट्स के एलिमेंट मिला के एक यूनिक सेट, एक पहला सेट बना देते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझाते हैं। सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 2 3। सेट बी है, इसके एलिमेंट है 5 6 7। और सेट सी है, इसके एलिमेंट है 8 9। नाउ हाउ विल यू मेक अ यूनिवर्सल सेट फ्रॉम दीज 3 सेट्स? तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे इन 3 सेट से? तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो एक ऐसा सेट बनाया विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सेट ए के भी एलिमेंट हो, सेट बी के भी हों और सेट सी के भी हों। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 से, 1 2 3। नेक्स्ट इज 5 6 7 8 9। तो दिस सेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई यू, ये सेट जो u से रिप्रेजेंट हो रहा है 1 2 3 5 6 7 8 9, ये जो है क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट इस तरह से होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट? व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर के मतलब क्या हुआ? जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट में, उसको गिन के आप उसका नंबर लिख दीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए कोई सेट है उसमें 4 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 4 हो गया। कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ a इज इक्वल टू 2 7 8 9। नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a? तो यू हैव टू राइट कार्डिनल नंबर, रिप्रेजेंट करेंगे n से, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a सेट का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट है? तो दिस कंटेन 4 एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट होंगे। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 8 इज यूनियन ऑफ सेट। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट? व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? सेट ऑफ यूनियन किसे बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे? हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज लिए सेट ए ले लिया हमने। A contains element 1 2 3 4 5। I am taking another set जिसके B नाम ले दिया उसका हमने और उसका रिप्रेजेंट कर दिया 4 5 6 7 8। Now you have to write union of set। यूनियन को आप रिप्रेजेंट करेंगे U से, A यूनियन B। तो A यूनियन B आपको लिखना होगा। तो यू हैव टू डोंट रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन बी एंड एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट ए। यानी एक एलिमेंट अगर दोनों सेट में आ रहा है तो उसको यू हैव टू राइट ओनली वंस, एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 है, 4 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो यू हैव टू राइट ओनली 4 5 वंस, एक बार लिखना है आपको। देन यू हैव टू राइट 6 7 8, फिर 6 7 8 जोड़ देंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 6 4 5। ये 4 5 आपको एक बार लिखना है, जो दोनों में है तो कॉमन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट।
नाउ व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट? इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन, A intersection B. In this you have to write the common elements which are present in both the set. दोनों सेट में A हो या B हो, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 कॉमन एलिमेंट, जैसे जाहिर सी बात है दिख रहा है आपको 4 और 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के मतलब क्या हो गया 4, 5, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में दोनों एलिमेंट के जो लिख देते हैं, साथ दोनों सेट के एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए जाते हैं, और इंटरसेक्शन में दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं जो कॉमन होंगे वो लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है U, U के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर्स अप टू 10। और सेट A है, इसके एलिमेंट हैं 3 5 7 9। तो आप कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, अपॉस्ट्रॉफी जैसे लगाते हैं A कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा A कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं A कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसके एलिमेंट अगर आपसे पूछे जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या होंगे, तो यू हैव टू लीव द एलिमेंट्स ऑफ ए, या सब्ट्रैक्ट कर दिए ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से आप क्या करेंगे, ये जो ए के एलिमेंट हैं वो हटा देंगे। तो ए के एलिमेंट क्या है 3, ये 3 हटा दिए, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9 हटा दिया। एंड राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए 1 2 4 6 8 10। तो ये हो गया 1 2 4 6 8 10, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर हो गए। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, सो दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, तो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। तो सेट एलिमेंट ए हैं 1 2 3 4 5 6, और बी के एलिमेंट है 2 3 7 8 9। एक एलिमेंट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक एलिमेंट बी है, उसके एलिमेंट है 2 3 7 8 9। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए माइनस बी आपको निकालना है, ए माइनस बी, ये एक सेट हो गया। दूसरा आपको निकालना है बी माइनस ए, बी माइनस ए ये दूसरा सेट हो गया। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए के एलिमेंट लिखना है, इक्वल टू साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब ए माइनस बी का मतलब ये हुआ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट्स ऑफ, या यू हैव टू लेसन द एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम द सेट ए, यानी सेट ए में जो बी के एलिमेंट शामिल हों वो हटा दीजिए। तो सेट ए है, इसमें बी के एलिमेंट कौन से शामिल हैं 2 3, 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 है नहीं, 1 नहीं। तो लीव 2 3, ये 2 3 जो एलिमेंट हटा दिए, 1 4 5 6, 1 4 5 6। नाउ द आंसर इज ए सब्ट्रैक्ट बी, यानी ए का डिफरेंस ए माइनस बी का क्या होगा 1 4 5 6। अब बी माइनस ए, सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम बी। ए के एलिमेंट बी से हटा दीजिए। अब ए के एलिमेंट कौन से हैं बी में 2 3 हैं, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 7 8 9। बी के एलिमेंट बी में बी माइनस ए के मतलब बी में से ए के एलिमेंट हटा, ये दो एलिमेंट हटा दिए, क्या बचा 7 8 9, 7 8 9। तो ये हो गया ए माइनस बी। ए जैसे कि नाम से जाहिर है ए में से बी के एलिमेंट हटाते हैं, बी माइनस ए मैंने बी सेट जो है उसमें से ए के एलिमेंट हटा दीजिए। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड द मेथड, द सेट्स विच आई हैव टोल्ड यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्लास 8 यू कैन आस्क मी, ठीक है।
मेरा मोबाइल नंबर दिया है नीचे, और उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। कोई क्वेरीज़ हो तो उससे पूछ सकते हैं।